Hello everyone, I am Rishi Raj Tiwari from College Explorer. So starting with, I have Pragyadi, who is already placed in Paytm, a great company with great turnover. So may I request Pragyadi to introduce herself. Hi guys, I am Pragya Chhajed and I am from Computer Science Engineering final year student in NIT Agartala. And as he said, I am placed in Paytm and I had a great experience during the interview time. It was a bit hectic, but yeah. Have you experienced any fear while you are giving your first interview, and how are you feeling now after getting such a great job? Like, yeah, everybody has fear while they are giving their first interview, but the key is that what we think is like our whole life depend upon that one interview, and which like it just build up our fear. Like, I think we should be a bit relaxed and be positive and have faith in ourselves that we would be very great during the interview. And it like first when I did my Paytm interview, there were like 4 rounds of interview like in one single day. And after every interview, I was like, यार मेरा तो selection नहीं होने वाला है, and I would be like sitting with a very sad face in front of my mother, मम्मी मेरा तो होने नहीं वाला कुछ like that. But whenever like the next interview round call would be there, I would like build up all the courage and have faith in myself, because if you are like getting, you know, if अगर तुम डर रहे हो तो like at that point you would get panicked, and So even the when you know the answer you won't be able to give it. Yeah. तो दी अगर इंटरव्यू के समय आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, जैसा होता है ना एग्जाम में अपन लोग जो चीज नहीं पढ़ के जाते वही आ जाती है. हाँ, like yeah, मेरे इंटरव्यू के टाइम पे it was like they asked me a question of backtracking, and it's like kind of a like very lengthy code was there for that, and I wasn't expecting, because coding it like the interview round was for 45 minutes and it was like a 400 line code of question. So I was a bit surprised, but I was very upfront and I told her that I don't know backtracking that much. And I think that is more helpful than like dragging along the question which you don't know. लाइक अगर वो तुमसे पूछ रही है और तुम्हें नहीं आता है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे उसको कि तुम्हें नहीं आता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएगी. और अगर तुम नहीं बोलोगे और उसी क्वेश्चन को ड्रैग करते जाओगे तो उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे. दी व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर फ्रेमिंग योर रिज्यूमे? Framing a resume, it's like pretty good task, and it's important also. Like अगर in campus placement ले रहे तो it's not that important, but for off campus placement it is. Like resume, if you haven't done much in 4 years, then also the resume, like making resume would be difficult, because you have to fit in, like you have to make it one page, and you don't have, yeah, like if you haven't done enough, then also it would be difficult. And if you have done like a lot of things, then also you need to know how to brief it into 1 page or 2 page resume. Like if you are having a resume which is more than 2 page, nobody is going to read it. Like if you're trying off campus, the one thing that you should keep in mind that your resume should be in latex format, so that like मतलब screening के time, if your resume is not in latex, then many time it's like that your resume is not even shortlisted. ओके दी. तो दी आप कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, या फिर आप पूरे 4 साल मतलब आप बस पढ़ाई में फोकस, या फिर आपको कॉलेज एक्टिविटीज बोरिंग लगती थी, या फिर आपको नहीं लगता था टाइम ऐसा वेस्ट है वो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइक आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो आई वाज इन एवरी ग्रुप विच वाज देयर, लाइक एवरी क्लब, एवरी ग्रुप. आई परफॉर्म्ड इन ऑडिटोरियम एंड आई वाजंट वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स. मतलब मैंने ड्रामा में पार्ट लिया है, और मैं ई सेल में थी, एंड देयर वर लाइक मेनी क्लब्स, एंड ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्लब आई वाज देयर. एंड और होना भी चाहिए. लाइक फर्स्ट ईयर इज द टाइम व्हेन यू कैन एंजॉय योरसेल्फ द मोस्ट, बिकॉज लाइक you don't have to study for your branch. Everything you are studying is like from all the branches. It's not like that important, and you're just given JEE, so you are like 2 साल बहुत पढ़ लिया यार, अब तो मतलब मजे कर. So like that is the thing. Like first year, so I would suggest everybody that they should participate in college activities and have fun.
सो दी कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए? क्या हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए कि सब की सब कर लें, जिससे कुछ भी आए तो हम कर सकें? नहीं मतलब कॉलेज लाइक प्रोग्रामिंग तो दे वुड आस्क यू इन लाइक, अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम कौन सी लैंग्वेज में वो कर सकते हो। तुम्हें एक से ज्यादा आती है, उससे तुम्हें कुछ फायदा मतलब एज इन कंपनी में जाने के बाद होगा, पर इंटरव्यू में दे वुड बी लाइक दे वुड प्रेफर यू टू यूज अ लैंग्वेज विथ विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। तो मेरे और हिसाब से लाइक आई वाज कंफर्टेबल इन C++, बट आई थिंक एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसपे तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लाइक, ताकि हाँ, अगर वो पूछे तो तुम्हें आए। और बाकी लैंग्वेजेस ऐसे हो जिसका तुम्हें बेसिक सिंटेक्स भी पता है, तो एटलीस्ट तुम्हें एक लैंग्वेज आएगी तो तुम्हें दूसरी लैंग्वेज सीखने में टाइम नहीं लगेगा। सो दी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म क्या आपको मदद किया किसी जॉब या फिर रिज्यूमे बनाने में या फिर किसी इंटर्नशिप को लेने में? मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स एक्सपीरियंस, बट माय एक्सपीरियंस विद लिंक्डइन इज वेरी गुड सो फार। Like I have done 3 internships and right now I'm doing my 4th intern, and out of those 3 intern I got from LinkedIn only. मतलब सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना चाहिए दीदी कि थर्ड ईयर में ही करें मेन इंटर्नशिप जो कॉलेज करवाते हैं? मैंने तो करा था सेकेंड ईयर में, लाइक आई वाज फॉसी फेलोशिप के थ्रू मैंने आईटी बॉम्बे में एक फॉसी फेलोशिप होती है, उसके थ्रू मैंने वेब डेवलपमेंट का इंटर्न करा था। तो या अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं करती। इट वाज काइंड ऑफ अ कंपटीशन जिसमें आपको कुछ ऑनलाइन टास्क वगैरह करने होते हैं, तो उसमें मैंने करा था और मैं सिलेक्ट हो गई थी, तो लाइक दैट। बट आई वाजंट वेरी लाइक फिक्सेटेड ऑन डूइंग इंटर्न एट दैट ईयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये बहुत परेशान करता है लोगों को। लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में फोकस करा जाए तो फिर ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट छोड़ा जाए। क्या कैसे मेंटेन करें इसको कि मतलब वेब डेवलपमेंट भी सीखना जरूरी है क्या इस तरीके से? पर लाइक मेरे ख्याल से लाइक योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब अगर तुम्हारा लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो जो है तुम्हें सेकेंड ईयर करिकुलम में ही होगा। अगर इफ यू आर इन CSE देन इट वुड बी इन योर सेकेंड ईयर करिकुलम इटसेल्फ। तो उसी टाइम पे तुम करिकुलम के साथ ही अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो यू वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। इट्स नॉट लाइक यू नीड टीचर्स और सीनियर्स टू डू दैट, यू just need to find like right tutorials or right like passion या will होना चाहिए उसको करने के लिए। It's very easy. Data structures is like very easy and algos are also not that difficult. तो But दिया वही आपने है दिया आपने कॉलेज की जो पढ़ाई होती थी उस पे फोकस करके चला कि कोई YouTube Udemy इस तरीके से आपने इस तरीके से पढ़ा? मतलब करिकुलम का तो आई यूज टू लाइक फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं होता था, सेकेंड ईयर में तो मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो होते हैं यूट्यूब पे वगैरह उन्हीं से पढ़ लेती थी। लाइक आई एंड इट्स नॉट विथ मी, लाइक सब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जना होता नहीं जो क्लास में बहुत लाइक एनर्जी के साथ बैठता है, लाइक फर्स्ट सीट पे बैठ के नोट्स बना रहा है, ऐसा कोई होता नहीं है। तो you need to rely on the tutorials, but जो ऑफ कैंपस मतलब क्या ऑफ करिकुलर चीजें होती है, जैसे आपको ML सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, तो वो सब के लिए यू नीड Udemy लाइक दैट कोर्सेज। वो सब यूट्यूब से आपको नहीं मिलेगा। एंड उसके टाइम पे अगर आपके पास कोई एक काइंड ऑफ मेंटर हो या फिर कोई ऐसा जना जो आपको गाइड कर सके तो इट वुड बी बेटर। बट मेरे टाइम कोई नहीं था, तो लाइक इट्स फाइन। सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब आप किसी एक फ्रेंड के साथ करोगे तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज अगर आप किसी दिन लाइक कि मेरे को मन नहीं हो रहा तो वो करेगा तो आपका भी मन हो जाएगा, अगर उसका नहीं हो रहा तो आपका होगा तो वो कर लेगा ऐसे। सर, what are the things that motivated you and what are the things that irritated you the most? Like during interviews? During this preparation time? Like motivated to like I think according to me like most important thing is for even a girl or a boy, it is like you should be independent in life, and independence is something that comes from money, and money is something you get from job. So that is the only motivation for me. And like speaking like
मेरे ख्याल से सबके लिए ऐसा ही होता है, कोई कितना भी बोल ले कि लाइक मैं बहुत पढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, बट एवरीबॉडीज लास्ट मोटिव इज टू गेट जॉब एंड गेट पेड. So that is the thing that motivates you the most. And irritation, so like in campus placement, so I didn't have much experience because I was placed in the second company itself. But off campus, agar I'll think that like sometime it happens that a company like takes your test and you give the test and it's very good, but they don't respond. Like they don't even respond whether you're selected or not selected, which is one thing it's very irritating. But it happens with startups only. If you are applying for a big company, they will definitely give you an answer. And दी yeah, आप rejections are also irritating. असाइनमेंट पे आपका क्या व्यू है? Sign, yeah, matlab, like, I don't want to say like that, but I haven't done assignments like by myself. It's like always there would be one person or there would be one copy that would be circulated around in the groups, जिसको बस कॉपी करके लास्ट मोमेंट पे बिल्डिंग में जाके सबमिट करना होता है. और मेरे ख्याल से लाइक मेरे अलावा लाइक 70% लोग ऐसे ही करते हैं असाइनमेंट्स. मतलब इट्स तो नॉट अ बिग डील. दी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या वो मिस्टेक कर सकते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जिससे वो और अच्छा कर पाए अपना? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में यू शुड लाइक जस्ट एंजॉय, लाइक डोंट फिक्सेट टू मच ऑन स्टडीइंग. लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत फुल मजे करो, कोई बस सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट करो. तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी जाके बैठ जाओ ऑडिटोरियम में, मस्ती करो, इधर उधर घूमो. बस एक छोटी सी चीज है कि अपना पॉइंटर आई थिंक आर्ट के ऊपर रखना. मतलब क्योंकि आर्ट के ऊपर पॉइंटर रखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. एक तुम लिटरली 2 दिन पहले भी एग्जाम की पढ़ाई करोगे तो भी तुम्हारा आर्ट के ऊपर तो पॉइंटर आई चाहिए. वेरी इजी. क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कम हो गया ना तो बाद में बढ़ाने में दिक्कत होगी. और मेनी कंपनीज हैव क्राइटेरिया, लाइक मोस्टली द क्राइटेरिया इज 7 और अबव, बट फॉर सम कंपनीज इट इज 8 and above. So like 8 के ऊपर you are in safe zone, you can sit in all the interviews. तो दी आप दूसरी ब्रांचेस वालों को मतलब क्या प्रेफर करेंगी, आईटी फर्म या फिर उनका जो उनकी वो होती हैं बेस कंपनीज जो होती हैं आईटी फर्म्स के अलावा जो होती हैं? Like मेरे हिसाब से like previously maybe core companies were like an option for them, but right now कोरोना वायरस की वजह से mostly all of them are diverted towards IT only. And I think like कुछ और नहीं हो, you should like at least know basic coding and data structure algorithm. Like it doesn't matter in which branch you are. Like I personally feel sooner or later they realize that placement होना तो IT में है. Because core companies अपने like personally अपने कॉलेज में बहुत कम आती है. और इन जनरल सारे कॉलेजेस में मेरे जैसे इफ आई हैव फ्रेंड्स दैट आर इन IITs एंड दे आर नॉट इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, दे आर गेटिंग प्लेसमेंट इन IT कंपनीज बिकॉज दे आर सेइंग दैट कोर कंपनी आती नहीं है. तो अगर IITs में नहीं आती तो बाकी कॉलेजेस में और कम आएगी. सो दी एट लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगी जिससे हम लोग मोटिवेटेड रहें या फिर हम लोग को इरिटेशन ना हो या फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो? अब मोटिवेटेड तो आई थिंक देखो जॉब सबको चाहिए और पैसा सबको चाहिए, तो मोटिवेशन तो वही है तुम लोग के लिए. और मतलब इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अपना मतलब खुद के तरफ ट्रू रहो और देखो कि जहाँ तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया और तुम्हें पढ़ना चाहिए तो लाइक प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. लाइक जैसे इस साल बहुत लोग लकी थे क्योंकि पैंडेमिक आ गया तो क्वारंटीन हो गए, तो काफी लोगों ने वो 2-3 महीने में बहुत लाइक कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया. अब जरूरी नहीं है तुम्हारे टाइम पे तुम्हें वैसा लाइक 2-3 महीने का टाइम मिले कि तुम लाइक अपनी कोडिंग स्किल्स को 2 महीने में एकदम बूस्ट कर लो. तो अगर वैसा नहीं होगा तो यू नीड कि तुम 3rd ईयर से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो करना कि अगर तुम्हें इंटरव्यूज के टाइम कुछ पूछेंगे तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं हो. और फिर जब इंटरव्यूज ऑन साइट होते हैं लाइक इंटरव्यू तुम्हारे सामने बैठा होता है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू वर्चुअल इंटरव्यूज. पर्सनली कोरोना ने आपको हेल्प करा है कि आपको मतलब डिमोटिवेट किया है? कोरोना ने लाइक
मतलब हेल्प तो इस चीज में करा है कि वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, और मैंने काफी एक्स्ट्रा चीजें करी है, काफी चीजें सीखी है, और फिर मैंने रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम था लाइक ड्यूरिंग पैंडेमिक। बट पैंडेमिक नहीं होता और इन कैंपस चीजें होती तो आई थिंक इन जनरल ओवरऑल प्लेसमेंट काफी बेटर होता अपने कॉलेज का, एक कंपेयर टू लाइक जैसा पिछले साल हुआ था उस हिसाब से इस साल इतना अच्छा नहीं है, और उसका रीजन पैंडेमिक ही है। गिटहब रेपो जो है उसमें या फिर जो अपन लोग के और भी चीजें हैं जैसे लिंक्डइन, गिटहब, इसमें अप टू डेट रहने का क्या मतलब, आप लोग क्या कैसे करें उसको अप टू डेट? मतलब हेल्पफुल है मगर उसको अप टू डेट कैसे रखें? अप टू डेट मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए, उसमें चीजें डालते रहना चाहिए, या फिर एक साथ प्रोजेक्ट्स करके उसमें मतलब एक गिटहब रेपो बनाना चाहिए या लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए? लिंक्डइन प्रोफाइल तो तुम्हारी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने बनाई थी सेकेंड ईयर, लाइक फर्स्ट ईयर में, पर मैंने उसको लाइक थर्ड ईयर तक कभी यूज ही नहीं करा था, वो बस बनी हुई थी। उसके बाद ही मैंने यूज करा था लिंक्डइन को, लाइक अराउंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टार्टिंग के टाइम पे। तो मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं, लाइक मैं आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर लाइक पोस्टिंग रेगुलरली, और मतलब ताकि उनका लिंक्डइन पे प्रेजेंस बना रहे, एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब अगर तुम रेगुलर पोस्ट कर रहे हो पर तुम्हारे पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं है तो नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन यू। लाइक इट्स बेसिकली जब तुम्हें जरूरत है तब तुम करो। और गिटहब का तो आई विल से कि अगर एक अच्छा गिटहब अकाउंट है तुम्हारा जिसमें तुमने प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल रखे, इट्स डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट टू शो टू योर रिक्रूटर्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू दी।